सॉरी बेटा वो वीडियो एंड हो गई सी, ठीक है। वही टॉपिक राजे मैं कंटिन्यू शेयर कर रहा। देखो मैं दोबारा वो चीज़ समझा रहा, यानी कि ये ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਲਸ ਦੇ ਐਟਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਕ ਦੇ ਰਾਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਲੌਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਇਨਸ ਦੇ ਗੇਨ ਕਰਨ ਦੀ। ਸੋ ਵੈਨ ਦਿਸ ਮੈਟਲ ਰੋਡ ਕਮ ਇਨ ਦੀ ਕੰਟੈਕਟ ਆਫ देयर ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ, the rod are continuously losing the electrons. When they lose the electrons, they left the metal ions and metal ion going to the solutions, and this way the solution develop plus 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 mean positive charge because metal ion come into the solutions. So concentration of the metal ion is increasing in the solutions. But where the electron go, electron is going the and not anywhere, so they are just accumulate along the rods. Okay, and this way the rod develop a negative charge and the solution develop a positive charge. So rod have a negative charge, solution has a positive charge because rod has a more tendency to lose the electrons, and in the same way rod atoms, so this is atom, they are losing electron. After losing electron they give the metal ions and electrons. Metal ion goes to the solution, so when they are goes into the solution their positive charge are increased, and rod electron are accommodated on the outer part of the rod, ठीक है। So rod develop a negative charge and solution develop a positive charge. So where is the negative and positive? When the two charge are separated and there is the some potential difference is generated, and this potential difference is known as a electrode potentials. So I am now going to explain the definition of the electrode potential, which are right on the back side of this page. I think you understand. I am writing on same in this page. Okay, on the last page I think you understand the concept of this concept in the previous video. The same concept is continues here. So we are writing the definition. What is the electrode potential? The potential difference, the potential difference set up between the metal and its metal ion. metal ion कित्थे ने? in solution, ठीक है। metal दी की सी rod, ठीक है। हुण तुहानूं पता भी metal दे चार्ज की आ गया सी, rod दे चार्ज की आ गया सी नेगेटिव, solution दे चार्ज किहड़ा डेवलप हो गया सी पॉजिटिव। सो जो rod ते नेगेटिव चार्ज आ गया, solution दे पॉजिटिव चार्ज आ गया, उन्हां विच एक पोटेंशियल डिफरेंस सैटअप हो गया ना, नेगेटिव पॉजिटिव सेपरेशनस करके जिहड़ा वो पोटेंशियल डिफरेंस सैटअप होया, दी पोटेंशियल डिफरेंस सैटअप बिटवीन दी metal and its metal ion is known as electrode potential, is known as electrode potential because we are talking about the rod of the metals. So they work as a electrode because they have the electrons. So this potential is known as the electrode potentials, ठीक है। They are indicated by the symbol E, ठीक है। in on the bottom they have write the POT या EPOT, you can write like this is known as the electrode potentials, ठीक है। शायद बच्चे तुहानूं समझ आ गया होए भी जदों एक मैटल दी रॉड अपने ही सोल्यूशन के कंटैक्ट दे विच आ रही है तो उहदे करके जिहड़ी मैटल दी रॉड सी, ठीक है, उहदे अपने ही आयन है सन, ठीक है, तो वो रॉड इलैक्ट्रॉन लॉस कर रही सी, ठीक है। उहदे करके रॉड के उपर नैगेटिव चार्ज डिवेलप हो गया, सोल्यूशन उपर चार्ज की डिवेलप हो गया पॉजिटिव हो गया, तो उन्होंने करके उन्होंने एक पोटेंशियल डिफरेंस सैटअप हो रहा है राजे। उस पोटेंशियल डिफरेंस नूं की बोलने आपां इलैक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। ये ध्यान देने वाली गल ये भी राजे, हुण देखो जिहड़ी रॉड है वो सोल्यूशन के रिस्पैक्ट इलैक्ट्रॉन लॉस कर रही है, तुसीं कह सकते हो इत्थे किहड़ा पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, OP दे नाल तुसीं इहनूं इंडीकेट कर सकते हो, क्योंकि जो मैटल अपने सोल्यूशन के कंटैक्ट में आए और वो इलैक्ट्रॉन लॉस करे, ठीक है, तो उस टाइम जो पोटेंशियल डिवेलप होएगा वो की होएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होएगा। क्योंकि ऑक्सीडेशन की जी डेफिनेशन होंदी है तुहानूं पता है, सारे बच्चों को राजी चीज़ पता होंदी है। ऑक्सीडेशन की होंदा है टेंडेंसी टू लॉस इलैक्ट्रॉन, और इतने रॉड की कर रही है इलैक्ट्रॉन लॉस कर रही है ना, इस करके जिहड़ा ओहदी रॉड और सोल्यूशन जिहड़ा मतलब सैटअप होया पोटेंशियल डिफरेंस उसनूं की बोलांगे राजे आपां इलैक्ट्रोड पोटेंशियल्स बोलांगे। ओके राजे, तुहानूं शायद क्लीयर हो गया होए। मैं वापस आउणा पहले पेज ते राजे अपने 3 केस दोबारा तुहाडे नाल डिस्कस करना। देखो
देखो फस्ट केस मैं ये लिया है भी जी मैटल और मैटल के आयंस ने, ठीक है, उन्होंने जी टेंडेंसीज ने वो इक्वल्स ने, ना मैटल की रॉड लॉस कर रही है इलैक्ट्रॉन, ना मैटल आयन गेन कर रहे हैं। इन्होंने केसा में राज जो इलैक्ट्रोड पोटेंशियल्स होएगा वो की होएगा इज इक्वल टू 0, क्योंकि ना दे रॉड उपर कोई चार्ज डिवेलप होया है, चार्ज डिवेलप ना होने करके उन्होंने कोई भी पोटेंशियल सैटअप नहीं हो रहा, सो आप कह सकते हैं दे हैव इलैक्ट्रोड पोटेंशियल इज 0, बट इन बोथ केसिस इलैक्ट्रोड पोटेंशियल इज नॉट इक्वल टू 0, इट मे बी लैस दैन 0, इट मे बी ग्रेटर दैन 0, ठीक है। इट डिपेंड करता राजे मैटल टू मैटल, ये चीज़ वैरी करती है, ठीक है। कुछ मैटल के पोटेंशियल पॉजिटिव ने, कुछ मैटल के पोटेंशियल नैगेटिव्स ने, ठीक है। तो नैगेटिव वाला केस मैं तुहानूं इत्थे समझाई दी चुकिया, हुण देखो ध्यान नाल, अगर मैं कहा भी मैटल के इलैक्ट्रॉन लॉस करने की कैपेसिटी मैटल आयन के नालों राजे की ये ज़्यादा होएगी, तो मैटल के इलैक्ट्रॉन लॉस करने की कैपेसिटी अगर मैटल के नालों ज़्यादा होएगी तो रॉड इलैक्ट्रॉन लॉस करेगी ना, ठीक है। मान लो जिवें आयनस ने जे लॉस करेगी तो आयन कित्थे जांदे रहणगे सोल्यूशन च, ठीक है। तो रॉड उपर चार्ज की डिवेलप हो जाएगा नैगेटिव, सोल्यूशन उपर चार्ज की डिवेलप हो जाएगा पॉजिटिव। नैगेटिव पॉजिटिव जो एक पोटेंशियल डिफरेंस सैटअप होएगा ना, उस पोटेंशियल की बोलांगे इलैक्ट्रोड पोटेंशियल, और रॉड उपर की हो रही है ऑक्सीडेशन, सो दे आर नोन एज दी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इन द केस नंबर 3। सो कम टू इन द केस नंबर 2 एंड जी थिंक अपोजिटली, ठीक है। सोचो राजे ये चीज़ उल्टी भी हो सकती है, शायद मैटल आयन के गेन करने की कैपेसिटी मैटल के लॉस करने के नालों ज़्यादा होए, फिर उस केस में की होएगा जी मैटल की रॉड है जो सोल्यूशन है वो किदा बनया हुआ मैटल आयंस का बनया हुआ है ना, वो की करेगा जो ये रॉड के इलैक्ट्रॉन्स ने राजे वो असैप्ट करेगा और किदे अंदर चेंज हो जाएगा मैटल के अंदर। सपोज करो ये मैटल के आयंस पे हुए ना, देखो बहुत सारे मैटल के आयन पे हुए हैं, ठीक है। हुण इन्हां आयंस की राजे इलैक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी जो आयंस ने, ठीक है, इन्हां आयंस की इलैक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी राजे ज़्यादा है, ये करते कि ने मैटल की रॉड तो इलैक्ट्रॉन गेन करते हैं और कि अंदर बदल जाते हैं मैटल्स से। हम मैटल्स बदल के बच्चे ये ही अटैच होने शुरू हो जाएंगे, पर जो मैटल्स होनियाँ दे आर न्यूट्रल्स, ठीक है। इस करके की होएगा जी मेरी रॉड होएगी वो अंदर जो मैटल्स के आयनस होंगे, उन्होंने मैटल्स के आयन मैटल के एटम होंगे सॉरी राजे, उन्होंने की होएगा जो इलैक्ट्रॉन ने वो तो बाहर जाते रहेंगे, रॉड उपर चार्ज किहड़ा डिवेलप हो जाएगा राजे पॉजिटिव चार्ज डिवेलप हो जाएगा, ठीक है। और सोल्यूशन उपर चार्ज किहड़ा जो इलैक्ट्रॉन सोल्यूशन च जाएंगे सोल्यूशन च चार्ज किहड़ा डिवेलप होएगा नैगेटिव, क्लीयर है ना, और रॉड उपर चार्ज की डिवेलप हो जाएगा पॉजिटिव। फिर भी देखो राजे रॉड और सोल्यूशन अंदर एक सपरेशन ऑफ चार्ज हैगी है ना, उत्थे भी एक पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है राजे, इस पोटेंशियल डिफरेंस में की बोलांगे आप इलैक्ट्रोड पोटेंशियल। मेरे कहने का मतलब की सी राजे ये हो सकता जो किसी मैटल की रॉड में आप ही आयन के कॉन्टैक्ट के लैके आने तो 3 पॉसीबिलिटीज़ क्रिएट हो सकती ने, शायद वो रॉड ना तो इलैक्ट्रॉन लॉस करे और ना ही इलैक्ट्रॉन गेन करे, बट ये चीज़ पॉसीबल नहीं हैगी, दैट इज़ द आइडियल केस। बट जो वो रॉड अपने ही सोल्यूशन के कंटैक्ट में आती है, जां तो रॉड के आयनस जोड़े आयनस होंगे ने मुकाबले की लॉस करने की कैपेसिटी ज़्यादा होंगी है, जां जो उन्होंने आयनस होंगे ने उन्होंने इलैक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी ज़्यादा होंगी, बिकॉज दे आर फील वैरी हंगरी फॉर द इलैक्ट्रॉन्स, ठीक है। सपोज करो इत्थे कॉपर होंदा, हुण जिहड़े कॉपर के आयन ने उन्होंने इलैक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी जिंक के आयन तो ज़्यादा होंगी है, इस करके जो कॉपर की रॉड में कॉपर आयन के कॉन्टैक्ट में लैके आने तो करते की ने कॉपर के इलैक्ट्रॉन अपने वाली साइड खिंच लेंगे ने, जिसके करके रॉड उपर चार्ज की डिवेलप हो जाता है पॉजिटिव, सोल्यूशन इलैक्ट्रॉन जान करके चार्ज की डिवेलप हो जाता है नैगेटिव, सोल्यूशन नैगेटिव चार्ज की एक्सैस हो जाती है और रॉड से चार्ज की एक्सैस हो जाती है पॉजिटिव की। नैगेटिव पॉजिटिव फिर एक पोटेंशियल डिफरेंस सैटअप होता है, इस पोटेंशियल की बोलने आप इलैक्ट्रोड पोटेंशियल। हुण देखो रॉड की कर रहा है, आयनस की कर रहे हैं, दे आर गेनिंग दी इलैक्ट्रॉन्स, मतलब इलैक्ट्रॉन गेन ही कर रहे हैं, सो दे आर नोन एज दी रिडक्शन पोटेंशियल। उस टाइम जी रॉड इलैक्ट्रॉन गेन कर रही है ਜਾਂ आयनस अगर आयनस गेन कर रहे हैं तो रॉड तो गेन कर रहे हैं ना, तो गेनिंग प्रोसैस इज मोर दैन लूजिंग प्रोसैस, यानी कि इलैक्ट्रॉन गेन करने का प्रोसैस ज़्यादा इलैक्ट्रॉन लॉस करने नालों, इन्हों बोलांगे रिडक्शन पोटेंशियल। जो राजे मैटल और वो आयन च इक्विलिब्रियम स्टैबलिश हो जाएगा राजे, उदों रिएक्शन अपने आप स्टॉप हो जाएगी। ये हर एक केस में है, ये रॉड जो तक इलैक्ट्रॉन लॉस कर दिए करी जान दो राजे, या गेन कर दिए करी जान दो, पर एक टाइम ऐसा आएगा जो ये मैटल और ये मैटल आयंस के होएगा राजे एक इलैक्ट्रॉन, मतलब एक इक्विलिब्रियम राजे एस्टैबलिश हो जाएगा, सॉरी बेटा एक इक्विलिब्रियम एस्टैबलिश हो जाएगा। इक्विलिब्रियम जो इन्हों के एस्टैबलिश हो जाएगा ना राजे, वो पॉइंट ऐसा होएगा जो जोड़ा इन्हों का मतलब लॉस करने की टेंडेंसी है या गेन करने की टेंडेंसी है राजे, वो की है सेम हो जाती है, ठीक है। लॉस क्यों करते हैं, लॉस गेन क्यों करते हैं, डिपेंड करता आयंस की पावर पर और आयंस के नंबर पर, ठीक है। सोल्यूशन की कंसनट्रेशन से भी डिपेंड करता, सोल्यूशन की टेंडेंसी से भी डिपेंड करता है, ठीक है, ठीक है। जिवें जिंक सी, सपोज करो सोल्यूशन च जिंक के आयन लैस सन, ठीक है, रॉड जो जिंक के सोल्यूशन के कॉन्टैक्ट में आई दे आर लूजिंग द इलैक्ट्रॉन्स,
ठीक है, ये भी हो सकता है क्योंकि जिंक आयन का नंबर घट सी, ठीक है। और ये दूजी गल, जिंक आयन के इलैक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी भी घट है। तो हो गई रॉड ने जो जिंक के सोल्यूशन में डिप किया, तुसीं रॉड ने इलैक्ट्रॉन लॉस करने स्टार्ट कर दे। जो रॉड ने लॉस किए इलैक्ट्रॉन, सोल्यूशन की गए आयनस गए, और रॉड उपर रॉड को रह गए इलैक्ट्रॉन। तो रॉड उपर चार्ज की डिवेलप हो गया, नैगेटिव चार्ज डिवेलप हो गया। सोल्यूशन आयन जान करके चार्ज किहड़ा डिवेलप हो गया, पॉजिटिव। नैगेटिव पॉजिटिव की डिवेलप होया एक पोटैंशियल डिफरेंस। इस पोटैंशियल डिफरेंस नूं की बोलने आपां इलैक्ट्रोड पोटैंशियल। अगर मैं दोबारा इत्थे शॉर्ट दे विच लिखां राजे, दैट इज दी रॉड, दैट इज दी सोल्यूशन। रॉड उपर नैगेटिव चार्ज है, सोल्यूशन उपर पॉजिटिव चार्ज है, तां भी उन्हां विच एक पोटैंशियल डिफरेंस सैटअप है। रॉड उपर पॉजिटिव चार्ज है, सोल्यूशन उपर नैगेटिव चार्ज है, तां भी उन्हां विच एक पोटैंशियल डिफरेंस सैटअप है। जिहड़ा आ पोटैंशियल डिफरेंस हुंदा भी मैटल और उहदे आयनस दे विच जिहड़ा पोटैंशियल डिफरेंस सैटअप हुंदा है, इस पोटैंशियल डिफरेंस नूं की बोलिया जांदा राजे, इलैक्ट्रोड पोटैंशियल बोलिया जांदा है। ठीक है राजे, इन्हां दो वीडियो के अंदर बच्चे तुसीं इलैक्ट्रोड पोटैंशियल नूं देख रहे हो। ठीक है, मैं यही लैक्चर अगे कंटिन्यूस करना राजे। हुण तुहानूं मैं पहले ही दस्सिया बच्चे, जिहड़ा इलैक्ट्रोड पोटैंशियल वो किहदी टर्म नाल शो किया जाता है। इलैक्ट्रोड पोटैंशियल इज शोइंग बाय दी टर्म POT। POT मतलब पोटैंशियल। ऊपर मैं की पुट किया बच्चे, एक नोट पुट करता है, इनू बोलते हैं स्टैंडर्ड इलैक्ट्रोड पोटैंशियल। ठीक है, पहला पॉइंट। सैकेंड पॉइंट है जो इलैक्ट्रोड पोटैंशियल है, इट इज़ ए रिलेटिव वैल्यू। ठीक है, किसी भी आप मैटल का जो इलैक्ट्रोड पोटैंशियल है वो सिंगली फाइंड नहीं कर सकते है। ठीक है, क्योंकि मैटल की जरूरत है जो सोल्यूशन के कॉन्टैक्ट में आ रहा इलैक्ट्रॉन लॉस करे या गेन करे। पर जो दो मैटल आप कनैक्ट कर देने या दो मैटल के सोल्यूशन किसी एक रॉड के थ्रू दोवां कनैक्ट कर देने, तो फिर ये पता लगता भी कौन हुण। देखो बच्चे, अगर मैं एक सिंपल जी एग्जाम्पल लवां, इन्हें लेमैन पर्सनस। ठीक है, अगर दो इंसान, ठीक है, जो रैसलर ने, ठीक है, क्लीयर है, वो फाइट ही नहीं करते आपस के विच, तो आप ये गल तो नहीं कह सकते ना भी किहड़ा रैसलर विनर होएगा या किहड़ा रैसलर ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, पर अगर दो रैसलर आपस के विच फाइट करनगे, आप फाइट नूं देखांगे, फाइट तो बाद आपां नूं पता लगेगा भी किहड़ा ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है, और किहड़ा घट पावरफुल है। ठीक है, यही सेम कंसैप्ट मैटल्स के अंदर है। जो आप एक मैटल की रॉड नूं एक सोल्यूशन के डिप कर देने, ठीक है, शायद मे बी वो इलैक्ट्रॉन लॉस करे, मे बी ना भी करे, क्योंकि उस टाइम वो जिहड़े आयनस ने या उही मैटल है और उही आयन है ने। पर जो उस मैटल को किसी दूजी मैटल के नाल कनैक्ट किया जाता है या उन्होंने किसी दूजे मैटल के नाल कंपेयर किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर सपोज करो, देखो मैं एक बीकर लै लेना, ठीक है, बीकर के अंदर एक रॉड लै लेना। ठीक है, ये रॉड कि बनी हुई राजे, जिंक की रॉड बनी हुई है, और सोल्यूशन मैं कि लै लिया राजे, जिंक सल्फेट का 1 मोलर सोल्यूशन मैं लै लिया। मतलब सोल्यूशन के अंदर कि आयन ने जिंक के। एक सोल्यूशन मैं होर लेना राजे, that are made of the copper sulfate solution and they contain the copper ions, and we have take a rod of the pure metal which are made of the copper. This is known as the copper electrode because they are rod and containing the electron, and this is known as the zinc electrode. ठीक है, both are connected by a wire. Just for a layman we are using here a voltmeter. ठीक है, आप एक वायर के थ्रू कनैक्ट कर देना। वोल्टामीटर आप यूज़ किया, वी हैव डिटरमाइंड द डायरैक्शन ऑफ द करंट एंड अमाउंट ऑफ द करंट। ठीक है, आप इन्होंने दोनों सोल्यूशनस नूं कनैक्ट करता है। हुण बच्चे जो दोनों सोल्यूशनस नूं कनैक्ट किया है, दोनों सोल्यूशनस के आयनस भी है और रॉड भी हैगियां ने, आयनस भी है तो रॉड भी हैगियां ने। हुण जिहदे आयन की कैपेसिटी अपनी रॉड चो इलैक्ट्रॉन खिंचण दी है, उस रॉड उपर चार्ज की डिवेलप होएगा पॉजिटिव। ठीक है, अगर सपोज करो इत्थे जिहड़ा कॉपर्स के आयनस होंदे ने, दे हैव द मोर टेंडेंसी फ्रॉम द कॉपर मैटल टू अट्रैक्ट द इलैक्ट्रॉन्स। ठीक है, और जिंक के अंदर भी जिंक के जिहड़े आयनस है ने, जिंक के आयन नूं की चाहिए ने, इलैक्ट्रॉन चाहिए ने जिंक की रॉड तो। ठीक है, नॉर्मली गल जो आयन अपने मैटल के कॉन्टैक्ट में आएगा, उस तो की विड्रॉ करेगा, इलैक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। बट ये सोचने वाली गल राजे इत्थे ये वे, जो आप जिंक की रॉड नूं एक कनैक्टिंग वायर के थ्रू एक कॉपर के सोल्यूशन के नाल कनैक्ट करता है। हुण राजे देखो, जिंक आयन के नालों कॉपर आयन के इलैक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि जिंक आयन +2 स्टेट से स्टेबल है, कॉपर +2 स्टेट से स्टेबल इन्ना नहीं है जिन्ना कि जिंक है। सो कॉपर हैव ए मोर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस, मोर टेंडेंसी एंड मोर टेंडेंसी या मोर रिक्वायरमेंट फॉर दी इलैक्ट्रॉन्स। ठीक है, इस करके जो जिंक और कॉपर की रॉड्स नूं उन्हां दे सोल्यूशन में डिप करके आपस दे विच कनैक्ट किया गया राजे, फिर पता लगा भी किहदे इलैक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी ज़्यादा और किहदे इलैक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी घट है। जिहदे आयन के इलैक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी ज़्यादा, सपोज करो कॉपर के आयन के इलैक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी ज़्यादा है, उन्हें रॉड तो इलैक्ट्रॉन गेन किए और किधर चेंज हो गया कॉपर मैटल च। पर जो उन्होंने रॉड तो इलैक्ट्रॉन गेन किए, रॉड उपर चार्ज की डिवेलप हो गया पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब इलैक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया ना राजे।
ठीक है। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ जिंक ਦੇ ਨਾਲ, ठीक है। यानी कि ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਨੂੰ पूरा कौन करेगा, जिंक। मीन ਜਿਹੜੀ जिंक ਦੀ ਰੋਡ ਹੋਏਗੀ ਰਾਜੇ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ लॉस करेगी, ठीक है। और जिंक की रॉड उपर चार्ज कि हो जाएगा डिवेलप नैगेटिव। फिर जिंक वाली साइड राजे की हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, और इस साइड की हो रही है राजे रिडक्शन हो रही है। क्लीयर। इस करके मैं बोलिया भी जी मेरी ये प्रॉपर्टी है इलैक्ट्रोड पोटेंशियल एक रिलेटिव प्रॉपर्टी है, मतलब ये दोनों प्रोसेस पर डिपेंड करती है इलैक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। ये मतलब दोनों प्रोसेस ने म्यूचुअली होंगे। अगर एक चीज़ ऑक्सीडाइज हुई है तो किसी ना किसी दूजा कोई कंपाउंड रिड्यूस भी होया, एवें नहीं होया भी इन्हें इलैक्ट्रॉन लॉस करते हैं तो अगे किसी ने गेन किए नहीं किए, नहीं कुछ होएगा। अगर एक ने लॉस किए हैं तो दूजे ने राजे की किया है, उसनों गेन किया है। क्लीयर है पॉइंट कि नहीं। मतलब दोनों प्रोसेस जोड़े कंबीनेशनस के विच होंदे ने, ठीक है, म्यूचुअली हो रहे हैं। एक अगर एक कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो रहा दूजा गेन हो रहा। हुण देखो जिवें जिंक के सोल्यूशन आपां कॉपर के सोल्यूशन नाल कनैक्ट किया बाय यूजिंग जिंक एंड कॉपर रॉड्स, और कॉपर आयन की टेंडेंसी जिंक नाल इलैक्ट्रॉन गेन करने की ज़्यादा सी, तो कॉपर आयन ने रॉड तो फटाफट इलैक्ट्रॉन गेन कर लिया और कॉपर की रॉड से चार्ज की डिवेलप हो गया राजे पॉजिटिव। वैन दी कॉपर प्रोड कंटेनिंग दी पॉजिटिव चार्ज मीन दे हैव दी tendency to accept the electron, so they withdraw the electron from that side, they withdraw the electron from the जिंक साइड, ठीक है। इस करके इस रॉड के अंदर जो इलैक्ट्रॉन ने वो जिंक साइड तो किहड़ी साइड मूव करनगे, कॉपर वाली साइड मूव करनगे। तो की होएगा, जिंक की रॉड लगातार लॉस कर रही है इलैक्ट्रॉन, तो जिंक की रॉड से की हो रही है ऑक्सीडेशन। फिर जो इस साइड पोटेंशियल डिवेलप होएगा वो किहड़ा पोटेंशियल होएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और जो इस साइड पोटेंशियल डिवेलप होएगा वो किहड़ा होएगा, रिडक्शन पोटेंशियल। तो मैं कह सकना जो मेरा इलैक्ट्रोड पोटेंशियल है राजे दे आर दी सम ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन। मतलब एक सैल का जो टोटल इलैक्ट्रोड पोटेंशियल होंदा राजे वो इन्हां दोवां दा की है, इन्हां दोवां दे पोटेंशियल्स का की होंदा राजे सम होंदा है। यानी कि अगर आप इलैक्ट्रोड पोटेंशियल नूं कहीए इत्थे तां आपां कह सकते हैं, देखो उपर नॉट नॉट मैं दोबारा यूज़ कर रहा, नॉट का मीनिंग क्लीयर कर देना बच्चे। स्टैंडर्ड हमेशा कंडीशनस होंदियां ने। अगर आप इलैक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमाइन करिए जो अपनी कंसनट्रेशन कितनी होए 1 मोलर, टैंपरेचर कितना होए 298 कैलविन, अगर कोई गैस हो उस टाइम प्रैशर कितना होए 1 बार। अगर आप किसी भी एलीमेंट या किसी भी मैटल्स का जोड़ा पोटेंशियल है वो डिटरमाइन करिए जो उन्होंने कंसनट्रेशन 1 मोलर होए, ठीक है, टैंपरेचर 298 कैलविन कह सकते हो तुसीं, या 25 डिग्री सैल्सियस कह सकते हो, ठीक है। अगर उस कोई गैस कंपोनेंट है तो उस टाइम उसका प्रैशर कितना है 1 बार। अंडर दैट कंडीशन विच पोटेंशियल वी आर मेजर्ड इज नोन एज दी स्टैंडर्ड इलैक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। शॉर्ट के अंदर SER कह सकते हो तुसीं, SER स्टैंडर्ड इलैक्ट्रोड पोटेंशियल तुसीं कह सकते हो। और जो इलैक्ट्रोड पोटेंशियल होंदा राजे हमेशा सम किदा होंदा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल का। इस चीज़ मैं होर थोड़ा जिहा क्लैरीफाई करना। देखो मैं इस पॉइंट उपर नहीं जा रहा भी आप इन्हां दा इलैक्ट्रोड पोटेंशियल किवें डिटरमाइन करांगे, ठीक है। मैं जस्ट इत्थे हिंट दे रहा तुहानूं विद दी हैल्प ऑफ SHE मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलैक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलैक्ट्रोड बच्चे एक रिवर्सीबल इलैक्ट्रोड है, मैं लास्ट ईयर तुहानूं स्टडी करवाया +1 दे विच, ठीक है। इट इज़ ए रिवर्सीबल इलैक्ट्रोड, ठीक है। और जो रिवर्सीबल इलैक्ट्रोड होंदा इहदे रिस्पैक्ट इस इलैक्ट्रॉन के रिस्पैक्ट आप किसी भी इलैक्ट्रोड की जी वैल्यू है राजे वो फाइंड कर देने, ठीक है। वो किवें फाइंड करने राजे है तो मैं ऑलरेडी दस चुकिया पहला ही, ठीक है। इन्ना लेंथी नहीं खिंचना इस टॉपिक में मैं, ठीक है। मैं ये दसना भी इलैक्ट्रोड पोटेंशियल आप किवें फाइंड कर सकते सा, ठीक है। तो जो आप किसी भी एक मैटल के सोल्यूशन में हाइड्रोजन इलैक्ट्रोड के नाल कनैक्ट करने और हाइड्रोजन इलैक्ट्रोड की वैल्यू आप कितनी लेने 0.0 वोल्ट ले लेने, उस टाइम जिन्ना भी पोटेंशियल वो वोल्टामीटर शो करता है वह सारा क्रेडिट किनू मिलता है राजे उस मैटल के आयनस नूं। सपोज करो अगर आप जिंक आयनस नूं किदे स्टडी करने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलैक्ट्रोड के नाल जिहड़ी वोल्टामीटर की रीडिंग आ रही है दैट इज़ दी 0.76 वोल्ट आ रही है, ठीक है। वो की होएगा ਉਹਦੇ अंदर जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलैक्ट्रोड होएगा ਉਹਦਾ पोटेंशियल आप कितना लैट कर लेने 0.0 वोल्ट कर लेने, यानी कि वो सारा पोटेंशियल किनू मिलया है, जिंक नूं मिलया है।
और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂ ਰਾਜੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ। ਅਗਰ ਜਿੰਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰੀਏ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਕ ਹੈ ਰਾਜੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲॉस ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਕਰਦਾ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਇਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਕ ਹੈ ਰਾਜੇ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲॉस ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫਾइंड ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਜਿੰਕ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਾइंड ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਤੋਂ लॉस कर रहा है इलैक्ट्रॉन, तो उस पोटेंशियल की बोलोगे तुसी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलोगे। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सपोज करो तो कितना पोटेंशियल आया 0.76 वोल्ट आया है, तो 0.76 वोल्ट की होएगा जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होएगा, क्योंकि वो अंदर जो एच का पोटेंशियल वो कितना मान लिया 0 वोल्ट। ठीक है, अगर ये सेम केस तुसी कॉपर दे नाल करते हो, ठीक है, मैं दो एग्जाम्पल लै रहा क्योंकि दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस ने, तो की होएगा जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलैक्ट्रोड है एक इलैक्ट्रॉन लॉस करेगा और कॉपर की ये गेन करेगा। हुण इस सेंस के अंदर जो कॉपर है वो इलैक्ट्रॉन गेन कर रहा है, मीन वो पोटेंशियल किहड़ा होएगा उहदा रिडक्शन पोटेंशियल होएगा और उसकी वैल्यू कितनी आएगी 0.34 वोल्ट। इतनी वैल्यू कि आ गई पॉजिटिव 0.34 वोल्ट आ गई, यानी कि जी वैल्यूज़ ने वी आर डिटरमाइंड फ्रॉम दी रीडिंग ऑन दी वोल्टा मीटर्स। वोल्टामीटर की रीडिंग उपर आप देख के बच्चे वैल्यू डिटरमाइंस कर रहे हैं। ठीक है, इस करके राज जो इलैक्ट्रोड पोटेंशियल्स होंगे ना, एक्चुअली एक अगर सैल की आप गल की गलवैनिक सैल की गल करिए तो गलवैनिक सैल के दो हाफ होंगे ने। फस्ट हाफ की होंगे वह ऑक्सीडेशन हाफ सैल और दूजा हाफ की है रिडक्शन हाफ सैल। एक ऑक्सीडेशन हाफ होंगे राजे, एक रिडक्शन हाफ होंगे है। ठीक है, जी ताड़ी लैफ्ट साइड है ना, लैफ्ट साइड, ठीक है, उन्होंने याद कर सकते हो। जी लैफ्ट साइड है उसके उपर की होएगी लैफ्ट साइड। हूँ एक पॉइंट याद रखो, जिसने इलैक्ट्रॉन लॉस किए वो कौन, उस उपर की हो रही है ऑक्सीडेशन, और जिस ऑक्सीडेशन होंगी उसको की बोलिया जाता है राजे अनोड। की बोलिया जाता है अनोड। अनोड का ए और ऑक्सीडेशन का ओ दोनों वोवल्स ने याद रखा जी, मतलब जी जिस साइड ऑक्सीडेशन हो रही है उसनों की बोलना है तुसी अनोड बोलना है। दूजे पास इलैक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं यानी कि रिडक्शन हो रही है, जिस साइड रिडक्शन हो रही है तुसी उसनों की बोलना है बच्चे कैथोड बोलना है। सी ते आर दोनों की ने कॉन्सोनेंट्स ने और ए और ओ दोनों की ने वोवल्स ने। क्लीयर है पॉइंट की नहीं, क्लीयर आ जाएगी नहीं, उन्हें एवं याद कर सकते हो तुसी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के प्रोसैस नूं। बच्चे जिस साइड नैगेटिव चार्ज होंदा है उस साइड की होंदी ऑक्सीडेशन, और जिस साइड पॉजिटिव चार्ज होंदा है उस साइड की होंदी है रिडक्शन। तुसीं इहनूं याद कर सकते हो एक वर्ड दे नाल। अगर मैं इत्थे दोबारा ड्रॉ करके देखा तुहानूं, सपोज करो जिवें आ एक सोल्यूशन सी, ठीक है, एक पासे आपां जिंक दा सोल्यूशन लै लिया, एक पासे आपां कॉपर आयंस दा सोल्यूशन लै लिया, दोवां अंदर आपां रॉड डिप कीतियां, ठीक है, दोवां नूं वोल्टामीटर दे नाल कनैक्ट किया, वोल्टामीटर कोई ना कोई रीडिंग शो कर ही रहा है। ठीक है, हुण जिंक के उपर की हो रही है ऑक्सीडेशन हो रही है ना विद रिस्पैक्ट टू कॉपर। ठीक है, यानी कि सैल के दो हाफ ने राजे। आ जिहड़ा इस साइड वाला हाफ है दिस इज नोन एज दी ऑक्सीडेशन हाफ सैल, जिहड़ा दूजा हाफ है दिस इज नोन एज दी रिडक्शन हाफ सैल। ठीक है, मैं समझा चुकिया तुहानूं। मैं जिंक नूं कॉपर नाल कनैक्ट किया, ठीक है, तो उस तो दौरान देखा गया भी जिंक के उपर की हुई ऑक्सीडेशन, कॉपर के उपर की हुई है राजे रिडक्शन हुई है। क्लीयर है पॉइंट की नहीं। तुसीं इहनूं किस वर्ड नाल याद रख सकते हो, लोन, LAON। एल तो मतलब लैफ्ट, ए तो मतलब अनोड, ओ तो मतलब ऑक्सीडेशन। ठीक है, जी लैफ्ट साइड है तुहाडे जिवें हुण मैं लिख रहा जी तुहाडी लैफ्ट साइड है वो किहदा काम कर रही है अनोड का। ठीक है, उहदे उपर चार्ज की है एल तो लैफ्ट, ए तो अनोड, ओ तो ऑक्सीडेशन, एन तो नैगेटिव। ठीक है, जी लैफ्ट साइड है वो उपर चार्ज की है वो लैफ्ट साइड किहदा काम कर रही है अनोड का। ठीक है, और जो अनोड का काम कर रहा है वो उपर की हो रही है ऑक्सीडेशन और वो उपर चार्ज की है नैगेटिव। एक लॉन वर्ड दे नाल तुसीं याद रख सकते हो। ठीक है, जो लैफ्ट साइड है वो कितना काम कर रहा है अनोड का, अनोड उपर की हो रही है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन उपर चार्ज की है नैगेटिव। वो अपोजिट दूसरी साइड याद रखा जी, जी दूसरी साइड है दैट इज दी कैथोड, उत्थे की हो रही है रिडक्शन और उपर चार्ज की होएगा रॉड उपर पॉजिटिव चार्ज होएगा। क्लीयर है पॉइंट की नहीं। यानी कि जी राइट साइड है वो किदा काम कर रही है कैथोड का, उस उपर की हो रही है रिडक्शन, उस उपर चार्ज की है पॉजिटिव। यानी कि अगर मैं कहा मेरी जी इलैक्ट्रोड मेरी जी इलैक्ट्रोकैमिकल सैल है या गलवैनिक सैल है, अज मैं टॉपिक डिस्कस नहीं किया इस करके प्रॉब्लम आ रही है। मैं सोचा शायद तुहानूं यही तुसीं लर्न किया ही होया तां मैं इस चीज़ को दोबारा डिस्कस नहीं कर रहा। मैं जस्ट इलैक्ट्रोड पोटेंशियल तुहाडे नाल डिस्कस कर रहा था। ठीक है, तो इलैक्ट्रोड पोटेंशियल भी काफ़ी लेंथी खिंचे गया राजे, इस करके मैं टॉपिक डिस्कस नहीं किए है तुहाडे नाल। क्लीयर है, बट मैं शॉर्ट के हिंट दे के तुहानूं राजे समझाता है भी इलैक्ट्रोड पोटेंशियल की होंदा। एक पोटेंशियल डिफरेंस जिहड़ा मैटल और उहदे आयन दे विच सैटअप
पाता उसनूं इलैक्ट्रोड पोटैंशियल बोलिया जाता है। ठीक है, हुण जो मैटल्स के सल्यूशनस काफ़ी सारे मैटल के सल्यूशन आप आपस के कनैक्ट करने आ, फिर हर एक मैटल की बच्चे जो टेंडेंसीज होंगी अलग अलग होंगी, क्योंकि तुहाडे हत्थ दियां भी 5 उंगलां इक्को बराबर नहीं होंदियां, इस करके सारे मैटल की टेंडेंसीज इक्को जिहियां नहीं होंदियां भी सारे इलैक्ट्रॉन लॉस करते हैं सारे ही इलैक्ट्रॉन गेन करते हैं। क्लीयर है पॉइंट कि नहीं। इस करके जो आप दो मैटल्स या दो मैटल के सल्यूशनस आपस के कनैक्ट कर देने आ किसी इलैक्ट्रोड के थ्रू, तो उन्होंने सल्यूशन अंदर उन्होंने आयन्स की अलग अलग टेंडेंसीज होने करके किसी की टेंडेंसी ज़्यादा इलैक्ट्रॉन गेन करने या किसी की घट है, तो जिसकी टेंडेंसी ज़्यादा दूजे तो इलैक्ट्रॉन विड्रॉ करने स्टार्ट कर दिंदा है। वो करके मैटल के अंदर दो हाफ क्रिएट हो जाते हैं, एक ऑक्सीडेशन हाफ और एक रिडक्शन हाफ। ठीक है, हुण जो इलैक्ट्रोड पोटैंशियल होंदा राजे होंदा तो किसी मैटल का अपना इंडिविजुअल है, पर आप उन्होंने इंडिविजुअली मेजर नहीं कर सकते है, क्योंकि अगर एक मैटल इलैक्ट्रॉन लॉस कर दी है तो दूजा कोई इलैक्ट्रॉन गेन भी करता है। ठीक है, अगर मैं जिंक और कॉपर की सैल को कनैक्ट किया होया ना, तो मैं अगर वोल्टामीटर उपर रीडिंग देखना सपोज किलो कितनी आ गई है 1.10 वोल्ट रीडिंग राजे मेरे वोल्टामीटर ने शो की है। हुण 1.10 जी मेरी रीडिंग कॉपर ने मतलब वोल्टामीटर ने शो की है, वो एक्चुअली इन्होंने दोवां रॉड के विच दा की है पोटैंशियल डिफरेंस शो किया है। उस तो मैनूं ये नहीं पता लग सकता भी जिंक की वैल्यू कितनी है 1.10 चों और 1.10 चों कॉपर की वैल्यू कितनी है। ठीक है, इस प्रॉब्लम आप सॉल्व किया सी राजे बाय यूजिंग दी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलैक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलैक्ट्रोड एक रिवर्सीबल इलैक्ट्रोड सी। ठीक है, और जिहदी वैल्यू आप कितनी मान ली सी 0.0 वोल्ट, क्योंकि सारे मैटल के पोटैंशियल आप इस रिस्पैक्ट रख के कैलकुलेट किए हुए सन। ठीक है, अगर आप जिंक का पोटैंशियल ये रिस्पैक्ट रख के कैलकुलेट किया तो वोल्टामीटर की रीडिंग कितनी आई 0.76 वोल्ट, और जिंक की ऑक्सीडेशन हुई विद रिस्पैक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलैक्ट्रोड, उन्होंने की बोलता ऑक्सीडेशन पोटैंशियल। कॉपर की जो आप स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलैक्ट्रोड के रिस्पैक्ट रख के इलैक्ट्रोड पोटैंशियल फाइंड किया तो कितना आया 0.34 वोल्ट आया। आप की बोलता उन्होंने रिडक्शन पोटैंशियल, क्योंकि कॉपर ऊपर की हो रही सी रिडक्शन विद रिस्पैक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलैक्ट्रोड। ठीक है, हुण राजे अगर मैं तुहानूं जस्ट एक वैल्यू दिखावां और तुहानूं ये पूछा भी यदी वैल्यू भी पॉजिटिव आई है और यदी वैल्यू भी नैगेटिव आई है, देखो यदी सॉरी यदी वैल्यू पॉजिटिव आई है राजे दी वैल्यू नैगेटिव आई है। ठीक है, अगर तुहानूं जस्ट एक लेमैन के तौर पर वैल्यू दी जाए भी जो जिंक है वह जो इलैक्ट्रोड पोटैंशियल 0.76 वोल्ट आया और जो कॉपर वह इलैक्ट्रोड पोटैंशियल 0.34 वोल्ट आया, कि बच्चे तुसीं वैल्यूज़ नूं देख के मैनूं दस सकते हो कि किस के उपर ऑक्सीडेशन हुई है या किस के उपर रिडक्शन हुई है, नहीं दस सकते ना। इस करके राजे इस प्रॉब्लम नूं आपां सॉल्व करने आ। ठीक है, बाई कन्वेंशन बाई कन्वेंशन तुहाडी बुक दे विच जां हर एक सम दे विच बच्चे बाई कन्वेंशन आपां कीता की है जिन्ना भी पोटैंशियल है ऑल इलैक्ट्रोड पोटैंशियल स्टैंडर्ड इलैक्ट्रोड पोटैंशियल इज या कह लो इज हैज़ टेकन इन द टर्म्स ऑफ इन द टर्म ऑफ द रिडक्शन पोटैंशियल। मतलब जी भी वैल्यू आप डिस्कस कर रहे हैं चाहे ऑक्सीडेशन होए आप की करना उसमें चेंज कर लेना रिडक्शन पोटैंशियल के अंदर, मतलब जो भी टर्म आप यूज़ करांगे या जो भी पोटैंशियल आप देखांगे आप उसमें करने चेंज कर लेने वो किमें चेंज कर सकते हैं राजे बाई कन्वेंशन किया कि इन्होंने सारे पोटैंशियल रिडक्शन की टर्म च लै सकते हैं। बच्चे कोई लॉजिक नहीं है भी ऑक्सीडेशन की टर्म च क्यों नहीं लए है, बहुत अगर दो चीज़ों कंपेयर करना उन्होंने अंदर कोई तो चीज़ सिमिलैरिटी चाहिए या दोनों पोटैंशियल ऑक्सीडेशन के हो या दोनों पोटैंशियल रिडक्शन के होने। हुण मान लो दोनों मैटल ने इन्होंने दोनों मैटल का नेचर अलग अलग है। ठीक है, मैं ऊपर लिखा हुआ एक जिंक और एक कॉपर दोवां का नेचर अलग अलग है, एक लॉस करता गेन करता है, फिर उन्होंने वैल्यू देख के तो आप आइडिया लगा ही नहीं सकते ना भी ऑक्सीडेशन हुई है कि रिडक्शन हुई है। ठीक है, इस करके राजे आप किया इत्थे दोवां दे पोटैंशियल जिहदा ऑक्सीडेशन पोटैंशियल है जां आपां उहनूं रिडक्शन च चेंज कर लीए जां जिहदा रिडक्शन उन्होंने किते चेंज कर लीए ऑक्सीडेशन के अंदर, फिर आप कंपेयर करिए। तुहाडी बुक के अंदर जिन्ने भी पोटैंशियल राजे गिवन ने ऑल आर इन दी रिडक्शंस वैल्यू। सपोज करो जिवें जिंक है, जिंक का ऑक्सीडेशन पोटैंशियल कितना आया सी, मैं हुण शॉर्ट दे विच लिखांगा राजे कितना आया सी 0.76 वोल्ट, और कॉपर का रिडक्शन पोटैंशियल कितना आया सी 0.34 वोल्ट। क्लीयर, एक किहदे रिस्पैक्ट आया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलैक्ट्रोड के रिस्पैक्ट आया ना, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलैक्ट्रोड का पोटैंशियल कितना लिया तुसीं 0.0 वोल्ट। हुण ध्यान दिया जे राजे मेरी गल ते। ठीक है, अगर मैं की करा जिहड़ा ये रिडक्शन पोटैंशियल है ते ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटैंशियल है इनू मैं किहदे चेंज करदा राजे RP मतलब रिडक्शन पोटैंशियल के मैं इनू चेंज करता, तो मैं जस्ट करना की है ध्यान दो ऑक्सीडेशन जिहड़ा प्रोसैस है दे आर रिवर्स ऑफ द रिडक्शन। ध्यान नाल दो ऑक्सीडेशन किस ते हो रही है जिंक दे, रिडक्शन किस ते हो रही है कॉपर ते, मतलब ऑक्सीडेशन ते रिडक्शन दोनों एक दूजे नाल रिवर्सीबल ने ना, मतलब ऑक्सीडेशन इज रिवर्सीबल ऑफ रिडक्शन या कह सकते हो रिडक्शन इज रिवर्सीबल ऑफ ऑक्सीडेशन, होर तो कोई फर्क नहीं ना।
ठीक है। यानी कि अगर कोई चीज़ अगर किसी ऊपर ऑक्सीडेशन हो रही है तो वो अपोजिट की हो रही है रिडक्शन, या किसी ऊपर रिडक्शन हो रही है तो वो अपोजिट की हो रही है ऑक्सीडेशन। मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, ठीक है। हम मान लो अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.76 वोल्ट आया, तुम इन्हों रिडक्शन पोटेंशियल चेंज करना चाहते हो, जस्ट चेंज इट साइन, ये तो साइन की है पॉजिटिव, इन्हों चेंज कर दो 0.76 वोल्ट, क्योंकि वोल्टामीटर ऊपर नैगेटिव साइन नहीं होंदा हैगा राजे, वो एक ट्रू वैल्यू शो करता है, ठीक है, बैलेंस्ड वैल्यू शो करता है जो पॉजिटिव इंटीगर दे विच ली जाती है, ठीक है। ये आपां मैथमैटिकली कह लो आपां चेंज करता, आपां कीता की है क्योंकि जिंक उपर की हो रही सी ऑक्सीडेशन, बाई कन्वेंशन मैं सारे पोटेंशियल किहदे लै रहा रिडक्शन के अंदर लै रहा, इस करके मैं जिंक के पोटेंशियल नूं किहदे चेंज करता बच्चे, पॉजिटिव तो की चेंज करता नैगेटिव। जदों मैं पॉजिटिव तो नैगेटिव चेंज किया ना राजे, जी वो वैल्यूज़ है वो की बन गई उसकी रिडक्शन पोटेंशियल। कॉपर का की रह गया 3.4 वोल्ट, क्योंकि कॉपर ऑलरेडी किहड़ी टर्म च सी पॉजिटिव टर्म दे विच सी, ठीक है। आई थिंक ये तुहानूं 2 पॉइंट क्लीयर हो जाएंगे, ठीक है। ਹੁਣ नैक्सट पेज तो देखो राजे, ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਾਂ पोटेंशियल लिया सी इलैक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਰਾਜੇ रिडक्शन पोटेंशियल ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ। रिडक्शन पोटेंशियल चेंज ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਸੀ ਬੱਚੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੈਟਲ ਦੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ LCG ਛੱਡਤਾ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਮੈਟਲ ਦੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ पोटेंशियल ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ H प्लस इंटू H स्केयर इज इक्वल टू 0.00 वोल्ट। राजे मेरे लिखने का तरीका की है भी ध्यान दो, अगर मैं मैटल आयन पहला लिखना और मैटल बाद च लिखना, ठीक है, देखो पॉजिटिव घट रहा है ना, पॉजिटिव तो 0 हो रहा है, यानी कि पॉजिटिव गोइंग टू 0, मतलब मैटल आर पॉजिटिव चार्ज की करता लॉस हो लैस इलैक्ट्रॉन, मैटल की शो कर दी है मोर इलैक्ट्रॉन, मतलब मैटल की कर रही है इलैक्ट्रॉन गेन कर रही है ना, मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होया मैटल इलैक्ट्रॉन गेन कर रही है, दैट इज़ दी रिडक्शन पोटेंशियल। अगर किते तुहानूं इस तरह लिखा मिल जाए ना Zn2 पॉजिटिव टू Zn, ठीक है, और इत्थे लिखा मिल जाए E नोड, तो तुसीं इत्थों देख के आइडिया लगा सकते हो राजे, जिंक पहला लिखा है और जिंक मैटल बाद च लिखी है, मीन ये जिंक का किहड़ा पोटेंशियल है रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, जो कितना है -0.76 वोल्ट, ठीक है। अगर मैं इसमें इस तरह लिखदा राजे जिंक इंटू जिंक आयन, मतलब 0 पहला लिखा और पॉजिटिव बाद च लिखा, मतलब मैटल इज लॉजिंग दी इलैक्ट्रॉन या लूज इलैक्ट्रॉन, दिस इज नोन एज दी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और वैल्यू कितनी सी 0.76 वोल्ट। यही वो वैल्यू सी राजे 0.76 वोल्ट जो तुसी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलैक्ट्रोड के रिस्पैक्ट राजे की कीती सी डिटरमाइन की हुई सी SHE के रिस्पैक्ट डिटरमाइन की सी, बट प्रैक्टिकली ये चीज़ नूं राजे तुसी कीता कि बाद दे विच इसे कंसैप्ट नूं बच्चे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नूं किते चेंज करता सी राजे तुसी रिडक्शन पोटेंशियल के अंदर, ठीक है। सिर्फ 3 मैटल्स ने राजे, जिवें कॉपर हो गया, सिल्वर तो मरकरी, जिन्हों का पोटेंशियल बच्चे पॉजिटिव इलैक्ट्रोड पोटेंशियल है, अदरवाइज बाकी सारे मैटल जोड़े पोटेंशियल ने वो की ने नैगेटिव ने। अगर आप सारे कि लेने राजे रिडक्शन पोटेंशियल के अंदर, जिवें तुसीं जिंक का इत्थे लिख ही लिया राजे Zn2 पॉजिटिव इंटू Z कितना आया -0.76 वोल्ट, जिवें निकल है निकल 2 पॉजिटिव इंटू निकल कितना लिखोगे -0.25 वोल्ट। बच्चे सारे पोटेंशियल मैं लास्ट ईयर +1 अंदर डिस्कस किए हैं, ठीक है। इस करके इतने जस्ट मैं हिंट दे रहा था इन्हों के उपर, पर फिर भी वीडियो काफ़ी लेंथी चली गई है, क्लीयर है। इस करके दोबारा इस कंसैप्ट में ध्यान समझ लो, ठीक है। जोड़ा भी इलैक्ट्रोड पोटेंशियल तुसीं डिटरमाइन किया, अगर मैं तुहानूं रिवाइज करवावां दोबारा, तो पहले गल दसो भी जो इलैक्ट्रोड पोटेंशियल सी वो की सी, इलैक्ट्रोड पोटेंशियल की सी बच्चे, एक पोटेंशियल डिफरेंस सी जोड़ा सैटअप होया सी किहदे अंदर मैटल एंड इट्स मैटल आयंस के अंदर, क्लीयर। सैकेंड पॉइंट की सी जी ई नोड पाया, ई नोड की सी एक स्टैंडर्ड कंडीशन सन ना, स्टैंडर्ड कंडीशन जब कंसिडरेशन कितनी लई 1 मोलर 298 कैल्विन टैंपरेचर ले लिया और गैस से प्रैशर कितना ले लिया 1 बार। थर्ड पॉइंट की सी जो इलैक्ट्रोड पोटेंशियल है दैट इज़ दी रिलेटिव वैल्यू, ठीक है, क्योंकि इलैक्ट्रोड पोटेंशियल सिंगली तो फाइंड कर नहीं सकते, वो वास्ते आपको की चाहिए एक पास ऑक्सीडेशन होंगी, एक पास रिडक्शन होंगी है, ठीक है, क्लीयर है पॉइंट कि नहीं। और चौथा पॉइंट किया कि आप जिन्ने भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सन, ठीक है, आपको किहदे चेंज करता, वी आर चेंजिंग इंटू दी रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल के अंदर आप सारे टर्म डिस्कस कर सकते हैं, क्लीयर है पॉइंट कि नहीं। लैन बच्चे कोई जरूरी नहीं भी आप रिडक्शन ही क्यों है, वी आर आल्सो टेकिंग द टर्म ऑफ द ऑक्सीडेशन, बट बाई कन्वेंशनस जिन्ने भी सम आप डिस्कस करांगे तुहाडे नाल जां तुहाडी बुक अंदर रिलेटेड ने, वो सारे के अंदर बच्चे जी वैल्यूज़ लिखिया हुई ने रिडक्शनस के लिखिया हुई ने, तुसीं उन्हें जज किवें कर सकते हो, बस उन्होंने सिंबल्स तो देख के, जिवें अगर वो इस तरह राइट की हुई है मैटल आयन पहला लिखिया और मैटल बाद च लिखी मीनो रिडक्शन है, और जो मैटल पहला लिखी और मैटल आयन बाद च लिखा है मीनो ऑक्सीडेशन, दैट इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दैट इज दी रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो अगर मैं इतने शॉर्ट के लिखा जो मेरा स्टैंडर्ड इलैक्ट्रोड पोटेंशियल है पूरी सैल का, वो बराबर होएगा सम ऑफ दी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड सम ऑफ दी
रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब ऑक्सीडेशन हाफ का जोड़ा सम है पोटेंशियल का और रिडक्शन हाफ का जोड़ा सम है पोटेंशियल का, सम ना करो इसका कह सकते हो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो मैं इतने कह देना भी इलैक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू, ठीक है, हुण ये उपर जोड़ा इलैक्ट्रोड पोटेंशियल अंदर दोनों हाफ ने ना, ऑक्सीडेशन हाफ पोटेंशियल प्लस रिडक्शन हाफ पोटेंशियल। ठीक है, और जिस उपर ऑक्सीडेशन हो रही है उसनों की बोले आप अनोड, जिस उपर रिडक्शन हो रही है उसनों की बोले आप कैथोड, मतलब दैट इज द ऑक्सीडेशन हाफ पोटेंशियल ऑफ अनोड, दैट इज द रिडक्शन हाफ पोटेंशियल ऑफ कैथोड। बट आप बाई कन्वेंशन किया कि ये जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है अनोड का उन्होंने कि चेंज कर लिया रिडक्शन पोटेंशियल से, तो आप इतने लिख सकते हैं नैगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। क्लीयर। हुण आप अगर सिंबॉलिक टर्म दे विच लिखिए तो आप इस तरह लिख सकते हैं माइनस E0 अनोड प्लस E0 कैथोड। अगर आप होर भी चेंज करिए तो इलैक्ट्रोड पोटेंशियल किवें फाइंड होएगा, E कैथोड माइनस E एनोड, जां होर शॉर्ट च लिखिए तो EC माइनस EA इज इक्वल टू दी इलैक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लीयर है, यानी कि अगर आप फार्मूला ड्राइव करिए तो एक सैल का जोड़ा इलैक्ट्रोड पोटेंशियल है राजे वो की आएगा E कैथोड माइनस E अनोड। ठीक है, इस डेरीवेशन दोबारा देख लो राजे, एक सैल का जोड़ा टोटल इलैक्ट्रोड पोटेंशियल होएगा और दोवां दे सम के बराबर होएगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, दोवें वैल्यू अलग अलग होंदियां ने, दोवां आप सेम टर्म दे विच लैके आए, आप जां तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन च बदल सकते सन जां ऑक्सीडेशन नूं रिडक्शन च। बाई कन्वेंशन आप कीता कि ये ऑक्सीडेशन नूं किधर चेंज किया राजे रिडक्शन के अंदर, इस करके इत्थे ऑक्सीडेशन सी मैं उन्होंने की बोलता नेगेटिव ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि ऑक्सीडेशन इज जस्ट रिवर्स ऑफ दी रिडक्शन या रिडक्शन इज जस्ट रिवर्स ऑफ दी ऑक्सीडेशन। ठीक है, सो इत्थे की पुट कर सकते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ दी एनोड प्लस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ दी कैथोड, प्लस वाली टर्म पहला लिख लो, नेगेटिव वाली टर्म बाद विच राइट कर सको। सो तुहाडा फाइनल डेरीवेशन की आ जाएगा जो इलैक्ट्रोड पोटेंशियल का है E कैथोड माइनस E एनोड। ठीक है, ये राज तुहाडी वीडियो इलैक्ट्रोड पोटेंशियल दी सी। ठीक है, इन्हूं देखिया जे, बाकी वीडियो आप नैक्सट टाइम ऐड करांगे। ओके राजे, थैंक यू।